العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرفه للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وإطاعته نجات للمطيعين الصلاة والسلام وتحيته الكرام على أشرف النبيين والخاتم المرسلين سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد یہ سارے مومنین زحمت فرمائیں، دو قدم آگے تشریف لے آئیں۔ آپ قریب آ جائیں گے تو میں آپ کے چہروں کی زیارت بھی کرتا رہوں گا، مجلس کی تلاوت بھی کرتا رہوں گا ماشاءاللہ۔ آ جائیے۔ یہ باہر والے مومن بھی اگر اندر تشریف لے آئیں تو بڑا خوبصورت ذکر ہے امام زمانہ، مالک آپ کی عزت رزق بخت وقار اقبال میں اضافہ فرمایا۔ آ جائیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ اللہ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ مالک بانیان مجلس، میرے جن دوستوں عزیزہ اقربا، جناب تصور کاظمی صاحب، بھائی جان تقدیس سوان صاحب، التجا کاظمی صاحب، بھائی عدنان عباس، بھائی سبت حسنین، ابو الفضل عباس، بھائی علی حیدر رضوی، قبلہ مولانا حسن علی کاظمی صاحب، ان جن دوستوں نے دام درہم سخن جس طرح بھی اس ذکر پاک میں حصہ ڈالا، میرا مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے رزق اور توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک مجھ سمیت تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص اس مجلس کے بانیان میں شامل ہیں بھائی جان ابو الفضل عباس بخاری صاحب، میرا مالک انہیں بھی مکمل شفا یاب فرما۔ جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑی چوکھٹ ہے، میرا مالک جتنے آئے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ذکر پاک کا صدقہ مکمل شفا یاب فرما۔ اگر کوئی مومن پریشان حال ہے تو تمام پریشانیاں دور فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، حجت دوران حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اس کا جو پدر ہے جو پسر ہے وہ علی ہے۔ جی بڑی مہربانی، تھوڑے بندے بولے لیکن کمال بولے۔ آج کے شب کا جو موضوع ہے، عالی جناب عزت مآب میرے محترم قبلہ غلام مصطفیٰ قمی صاحب انشاءاللہ آپ کو مفصل خطاب فرمائیں گے، میرے امام کے فضائل اور مصائب۔ میں صرف چند جملے پڑھ کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ اس امام کی جس مصرے کی میں نے تلاوت کی ہے، اس مصرے کا پتہ ہونے کے لیے، سمجھنے کے لیے بندے کو امام کا حسب بھی پتہ ہونا چاہیے اور نسب بھی پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اس کا جو پدر ہے جو پسر ہے وہ علی ہے، یہ نور وجاہت سے بھی کچھ بڑھ کے وجی ہے۔ نہیں، تھوڑے بندے بولے ہیں میر پرو اور بندے نہ بولے میں 1.25 مہینے کے بعد مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مجلس پڑھنا بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ اس کا جو پدر ہے جو پسر ہے وہ علی ہے، یہ نور وجاہت سے بھی کچھ بڑھ کے وجی ہے، یہ نور وجاہت سے بھی کچھ بڑھ کے وجی ہے۔ قبلہ حضور چوتھا مصرع آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، آپ میری شفا کے لیے دعا فرمائیے گا۔ اس کا جو پدر ہے جو پسر ہے وہ علی ہے، یہ نور وجاہت سے بھی کچھ بڑھ کے وجی ہے، کردار میں افعال میں انداز میں لوگو امام تقی میں ہی محمد کی شبیہ ہے۔ حیدری جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ انکل جی۔ شاہ صاحب میرے حق میں دعا فرمائیے گا، امام تقی میں ہی محمد کی شبیہ ہے۔ اچھا جی، بات بڑی جلدی میں شروع کر کے سمیٹنے لگا ہوں۔ بازار میں جلوہ فگن تھے آپ کے اور میرے 9ویں امام قبلہ حضور آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ امام بھی 9 میں تھے اور امام کا سن بھی 9 سال تھا۔ بغداد کی گلیوں میں جلوہ فگن، بھائی اسجد جی، بغداد کی گلیوں میں جلوہ فگن۔ کتاب والا لکھتا ہے کہ وقت کے حاکم مامون الرشید کا قافلہ گزرا، قافلے کا اس بازار میں داخل ہونا تھا کہ وہاں کھڑے جوان، بزرگ، بچے، مرد، عورت، ہر کوئی وہاں سے بھاگ گیا۔ جس کو پروفیسر صاحب جہاں رستہ ملا وہ اس طرف چلا گیا، کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں ہو گیا، کوئی بائیں چلا گیا، کوئی دائیں چلا گیا۔ جملہ آپ کی ضیافت ایمانی کی نظر کرنے لگا ہوں، یعنی جن کا عقیدہ دائیں بائیں تھا وہ دائیں بائیں ہو گئے۔
जी बड़ी मेहरबानी। कितने समझदार लोग बैठे हैं। जिनका अकीदा दायां बायां था वो दाएं बाएं हो गए। और मैं ये जुमला बड़ा कम पढ़ता हूँ आगा जी, आज मेरा दिल कर गया है। ये जितने दोस्तों ने इसका एहतमाम किया उनके रिस्क में इजाफे के लिए ये जुमला भी पढ़ने लगा हूँ। जिनका अकीदा दायां बायां था काज़मी साहब वो दाएं बाएं हो गए। जिनका अकीदा दायां बायां था वो दाएं बाएं हो गए। और वो रुका रहा जिसके रुकने की वजह से कायनात रुकी हुई थी। आहा, अज़मत इमाम तकी भाई तकदीस, अज़मत इमाम तकी। वो रुका रहा जिसके रुकने की वजह से कायनात रुकी हुई थी। अच्छा, अब काफ़िला ये देख के मामून रशीद हैरान हो गया। उसने कहा अजीब बात है, मेरे काफ़िले के रोब व दबदबे से, मेरे काफ़िले में मौजूद हथियारों से, सिपाहियों से, घोड़ों से, सालारों से इतने ज़्यादा लोगों को देख के सारे भाग गए। ये अजीब बच्चा है जो खड़ा रहा, इससे रहा नहीं गया। अपनी शाहाना सवारी से उतर के इमाम तकी के पास आया। 9 साल का बच्चा मामून रशीद के सामने उसकी जानिब देख के कहते, ओ बच्चे तू यहाँ से हटा क्यों नहीं? ओ बच्चे तू यहाँ से हटा क्यों नहीं? मिंबर की इज़्ज़त व अज़मत की कसम, जितने बंदे तारीख़ से ताल्लुक़ रखते हैं 9 साल के इमाम तकी में नहजुल बलागा बोलने लग गई। हाँ, अज़मत इमाम तकी, अज़मत इमाम तकी। उसकी जानिब देख के फरमाया मेरे यहाँ से हटने की 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि मैंने तेरा जुर्म किया हो, लेकिन हम उस ख़ानदान से हैं जुर्म जिनके करीब भी नहीं आता। फरमाया दूसरी वजह मेरे हटने की ये हो सकती थी कि तेरे गुजरने के लिए रास्ता कम हो, लेकिन ये बात भी नहीं। फरमाया तीसरी वजह ये हो सकती थी कि लोगों पे बिला वजह जुल्म करता हो, लेकिन मैं तुझसे ये गुमान भी नहीं रखता। 9 साल के ज़ाहिरन जो बच्चा समझ रहा था ये जिसे, उसकी गुफ्तगू सुनी, अपनी सवारी पे बैठा, चलता चलता जिस काम के लिए अपने महल से निकला था उस काम के लिए दरिया के किनारे पहुंचा। किबला काज़मी साहब मिंबर की अज़मत की कसम, अब ये समंदर से वो काम करके वापस आया। क्या देखते हैं बगदाद के उसी बाज़ार में उसी जगह पे 9 साल के इमाम तकी जलवा फिगन है। इमाम के करीब आया, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, इमाम के करीब आया। करीब आके इसने अपना हाथ यूं अपनी पुश्त के पीछे रखा हुआ है, पीछे रख के कहते हैं बच्चे बताओ मेरे हाथ में क्या है, बच्चे बताओ मेरे हाथ में क्या है। अज़मत तकी का जुमला पढ़ के देखने लगा हूँ कौन सा बंदा मजलिस में हाजिर बैठा है, कौन से बंदे का जहन कहीं और मौजूद है। मेरे घर वालों, मेरे इलाके वालों, मेरे शहर वालों, मिंबर की अज़मत की कसम, इसने हाथ पुश्त के पीछे करके 9 साल के इमाम तकी से पूछा बता मेरे हाथ में क्या है। इमाम तकी ने उसकी जानिब देखा, मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह अपनी कुदरत से दुनिया में कुछ लोगों को इज्जत देता है, वो इज्जत का इस्तेमाल करते हुए अपने महलों से अपनी शाहाना सवारियों पे बैठ के निकलते हैं, अपने वजीरों, मशीरों, सिपाहियों, दरबारियों, हवारियों के हमरा समंदर के किनारे पहुंचते हैं, वहां जाके अपने बाज हवा में छोड़ते हैं, वो समंदर की तह में जाते हैं, समंदर की तह में जाके वहां से मछली का बच्चा पकड़ते हैं, इन बादशाहों को मछली का बच्चा देते हैं। ये बच्चा मछली का अपनी हथेली में रख के अपनी मुट्ठी बंद करके मुट्ठी पुश्त के पीछे रख के हमाले मोहम्मद का इम्तिहान लेने आ जाते हैं। अल्लामा नज़मत इमाम तकी, ये बाहर वाले बंदे जी बड़ी मेहरबानी जी, तायद का शुक्रिया जी, आपकी क्या बात है जी, बड़ी मेहरबानी। फरमाया हम आले मोहम्मद का इम्तिहान लेने आ जाते हैं। यूं किताब वाला लिखता है जिस्म में कपकपी, वक्त का हाकिम, सामने 9 साल का बच्चा, लेकिन जिस्म में कपकपी। आपके एहतराम में बड़ी जल्दी छोड़ रहा हूँ। जिस्म में कपकपी, ज़ुबान तालू के साथ, चेहरे का रंग जर्द, बिल्कुल घबराया हुआ, कहता है अच्छा लेकिन अपना तारुफ तो करवा दो, अपना तारुफ तो करवा दो। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते हैं जहाँ में आती है सारी खुदाई दर पे मेरे। आहा, जिसका हाथ नीचे रह गया उसका भी मुकद्दर। शबीउल हसन काज़मी का भी नसीब। भाई तनवीर जी 9 साल के इमाम नकी फरियाद शाह जी मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। 9 साल के इमाम तकी उसकी जानिब देख के फरमाते हैं जहाँ में आती है सारी खुदाई दर पे मेरे, हमारा काम है उनको खैरात दे देना, तुम्हारा शौक व बरम सब हमारे बस में है, नबी की आल का इम्तिहान मत लेना।
अज़मत इमाम तकी। फरमाया नबी की आल का अब इम्तिहान मत लेना, ये इम्तिहान ही था जिसे देने के लिए अली की बेटियां और बहुएं यूं बंदे हाथों कभी किसी दरबार कभी किसी बाज़ार। अजरुकुम मिनल्लाह। मैंने गुज़िश्ता 2-3 मजलिसों पे मसाइब नहीं पढ़े, लेकिन मैं अपने वक्त के अंदर क़िबला के एहतराम में बिल्कुल बड़ी जल्दी से छोड़ने लगा हूँ। अज़दारों मसाइब पढ़ने लगा हूँ। उस 4 साल की सैयदज़ादी का मेरे अगले जुमले पे जितने बैठे ना, इन्हें माओं की झोलियों से मजलिस सुनी है। मेरे अगले जुमले पे हर बंदे की खाए भी निकलेगी, हर बंदे का हाथ सीने पे भी जाएगा। उस सैयदज़ादी का कि जिसके कानों से आज भी ताज़ा खून जारी है। हाय हुसैन अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मालिक आपकी खाए कबूल फरमाए। जो खाए ना कर सके वो बीबी से खैरात मांगे खाए की। अज़ादारों बड़ी जल्दी करने लगा हूँ। रिवायत के लफ्ज़ कहते हैं जब शाम गरीबा खैमों को आग लगी ना, तो हर एक सैयदज़ादी खैमों से बाहर चली गई, हर सैयदज़ादी खैमे से बाहर निकल गई। रिवायत के लफ्ज़ कहते हैं अपने बालों से चेहरा छुपा के, बाल खाके करबला से छुपा के खैमों से निकलती जा रही थी। लेकिन एक 4 साल की सैयदज़ादी थी जो खैमे से बाहर नहीं निकली। पूछा सैयदुस साजिदीन ने, जिसके घर छोटी औलाद है, बेबस होकर मातम करेगा। पूछा सैयदुस साजिदीन ने, फरमाया सकीना बहन सारे खैमों से बाहर निकल गए, हर सैयदज़ादी निकल गई, तू खैमों से बाहर क्यों नहीं निकली? रो के फरमाया भैया सज्जाद उन सब के बाल बड़े थे, उन्होंने बालों से चेहरा छुपा लिया। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे बाल छोटे हैं और मैं हुसैन जैसे इमाम की पर्दादार बेटी। अजरुकुम मिनल्लाह। और अब जब निकली है ना खैमों से, तो किताब वाला लिखता है अपने बाप का मैयत भी तलाश कर रही थी, रोती भी जा रही थी। अज़ादारों ये जो बेटियों के बाप बैठे हैं ना, मेरी खुद 13 माह की बेटी है, अगला जुमला पढ़ने के मिंबर की अज़मत की कसम मुझसे जुमला खा नहीं जा रहा। अज़ादारों बेटियों के बाप किसी की बेटी को शाम के वक्त बाज़ार से गुज़रता हुआ देखे ना, तो एक दफ़ा अपने दिल में ख्याल करते हैं अल्लाह जाने इसके पास सवारी है या कोई नहीं, अल्लाह जाने इसके पास कोई मर्द है या कोई नहीं, अल्लाह जाने ये शाम का वक्त है अपने घर कैसे पहुंचेगी। अजीब लोग थे करबला में। अज़ादारों बीबी पूछती जा रही थी किसी ने मेरा बाबा देखा है? एक घुड़सवार बीबी के करीब से गुजरा। बीबी ने फरमाया या शेख खल रही था अभी, ऐ शेख तूने कहीं मेरा बाबा देखा है? उसने कहा मन अंत या सभी, ऐ बच्ची तू कौन है? फरमाया अना सकीना बिन्त हुसैन, मैं हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना हूँ। जितने बेटियों के बाप बैठे हो हक बनता था ये घोड़े से उतरता, बच्ची के सर पे हाथ रखता, प्यार से बच्ची को बाप की मैयत पे बेचता। अगला जुमला तेरी मातम का जुमला है। ये बेगैरत घोड़े से छलांग मार के उतरा, इसने अपना हाथ उठाया, इस रंग में जवाब दिया। 4 साल की बच्ची जमीन पे गिर गई, दोनों हाथ जोड़े, रो के फरमाया ओ शेख मार तो लिया है, अब बता मेरा बाबा कहाँ है? ओ मेरा बाबा। अजरुकुम मिनल्लाह। जिसकी खाए बुलंद हो गई मालिक आपको दुनिया को कोई गम न दे। अज़ादारों अब इसने बच्ची को, जितने बैठी हो माओं की झोलियों से आपने मजलिस सुनी है, इसने बच्ची को बाप की लाश पे भेजा कैसे? अज़ादारों इस बेगैरत का हक बनता था ये चलता चलता इमाम की लाश के करीब आता, इसने तीर कमान में रखा, तीर उस तरफ फेंका जहां टुकड़ों में तकसीम लाश पड़ी थी तेरे मेरे इमाम की। अज़ादारों अब बच्ची दौड़ती हुई बाप की मैयत पे गिरी। आखिरी जुमला और मैं दुआ देने लगा हूँ। अज़ादारों मिंबर की कसम, अगर अल्लाह ना करे किसी बेटियों के बाप दुनिया से चला जाए ना, तो जब जनाजा उठाने का वक्त आता है ना, बड़ा मुश्किल वक्त होता है। उस टाइम ख़ानदान की बुज़ुर्ग औरतें बच्चियों के करीब आती हैं, बेटियों को थामती हैं, बेटियां रो रो के कहती हैं मेरा बाबा कहाँ जा रहा है, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहा है, मेरे तेरे बाद मेरे मेके घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अज़ादारों हर बेटी को संभालने के लिए कहीं से फूफी आगे बढ़ती है, कहीं से खाला आगे बढ़ती है,
کوئی اور عورت آگے بڑھتی ہے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، کوئی پانی لے آتا ہے، کوئی دودھ لے آتا ہے، کہتے گھبراؤ نہیں، آج سے میں تیری، آج کے بعد میں تیرا سہارا ہوں۔ کوئی کہتے گھبراؤ نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ خاندان کے مرد قریب آتے ہیں، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ماموں کہتے ہیں میں تیرا باپ ہوں، چچا کہتے ہیں میں تیرا باپ ہوں، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میرا گھر تیرے لیے میکا ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ عزادارو، دنیا اور کی واحد بیٹی ہے، 4 سال کی حسین کی بیٹی، جسے باپ کی میت سے جدا کرتے ہوئے کسی نے سہارا نہیں دیا، بلکہ حرام زادے شمر نے سید زادی کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، منہ پہ تماچے مارے، دوڑتی ہوئی دریا کے کنارے گئی، رو کے کہتی ہے چچا عباس کہاں ہو؟ اللہ لعنت اللہ۔